بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قابل احترام معزز سامعین و سامعات، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو اللہ، جو خالق کائنات، میرا اور آپ کا، ساری دنیا کا خالق اور مالک. بعدہ لاکھوں درود و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیغامات کو میرے اور آپ تک پہنچایا. معزز حاضرین، میں اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، جس موسم سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ محرم الحرام. یہ مہینہ بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ ہے. یہ مہینہ بڑی ہی عبادتوں والا مہینہ ہے. بڑا معزز مہینہ ہے. اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی عزت ہے، اس کا بڑا احترام ہے. دور جاہلیت میں وہ تمام لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھے، تو اس طرح کی رہنے والی قوم، جاہل قوم بھی اس مہینے کی قدر کرتی تھی، اس مہینے کی عزت کرتی تھی، اس مہینے کا احترام کرتے تھے. پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. تمام مہینے اللہ کے ہیں، تمام دن اللہ کے ہیں، تمام اوقات بھی اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہے، لیکن اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف دے کر کے اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی فوقیت کو بیان فرمایا. یہ مہینہ عبادتوں والا مہینہ ہے، عزتوں والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، لیکن آج لوگ دنیا میں محبت کے نام پر اس مہینے کو بدنام کر دیا. لیکن لوگوں نے آج اس مہینے کو محبت کے نام پر بدنام کر دیا ہے، اسے ذلیل کر دیا ہے، اسے رسوا کر دیا ہے، لوگوں کے درمیان میں غلط نقشہ پیدا کر دیا ہے اور لوگوں کو غلط تاثر دے دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے. یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، لوگوں نے اسے ماتم کا مہینہ بنا دیا ہے. یہ روزوں کا مہینہ ہے، لوگوں نے اسے نوحہ کرنے کا مہینہ بنا دیا ہے. اس رسول کے نام پر، آل رسول کے نام پر، حسن اور حسین کے نام پر،
तरह तरह के बिदात और खुराफात को इस महीने के अंदर लोगों ने ईजाद कर लिया। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महीना अल्लाह ताला का महीना है। रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के नज़दीक अगर कोई रोज़े हैं तो वो मुहर्रम के रोज़े हैं। तो हमने मुहर्रम के महीने में रोज़े रख करके उसकी इज्जत करना, रोज़े रख करके सवाब हासिल करना, रोज़े रख करके जहन्नुम से नजात पाना, रोज़े रख करके दुखूल जन्नत का ज़रिया और सबब बनने के बजाय बिदात और खुराफात बना करके, बिदात और खुराफात को ईजाद करके, तरह तरह के रस्म व रिवाज को इस महीने में ईजाद करके, ना तो हमने इस महीने के मुहर्रम, इस महीने के इज्जत को, इस महीने के एहतराम को पामाल किया, बल्कि इस महीने को बदनाम भी कर दिया। इस महीने को मातम का महीना बना लिया है, इस महीने को रोना का महीना बना लिया है, इस महीने को नोहा करने का महीना बना लिया है, इस महीने को मनहूस महीना समझ गए हैं। मनहूस महीना समझ करके इस महीने में ना शादी करते हैं, ना ब्याह करते हैं, ना दुकानें ओपन करते हैं, ना अच्छे काम करते हैं, ना मंगनियाँ करते हैं, कोई भी अच्छा काम इस महीने के अंदर करते, ये सोच करके कि ये महीना मातम का महीना है, ये महीना रोने का महीना है, ये महीना गमगसारी का महीना है समझ करके लोगों ने तरह तरह के बिदात और खुराफात को ईजाद कर दिया। मेरे भाइयों, ये महीना, इसका मकाम और इसकी इज्जत अलग चीज़ है। दौरे हाजिर में किए जाने वाले बिदात और खुराफात से ना इस महीने को ताल्लुक़ है, ना शरीयत को ताल्लुक़ है, ना दीन इस्लाम को ताल्लुक़ है, ना इससे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत आती है, बल्कि सब के सब भी बिदात और खुराफात है। इससे मुझे और आपको बचना चाहिए, बल्कि इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखे, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़े, नवाफिल पढ़े, रोज़ों का एहतिमाम करे, सदका और खैरात करते रहे, बुरे कामों से बच जाए, गंदे कामों से बच जाए, हराम कामों से बच जाए। मुशरिकीन मक्का जो जंगजू थे, जो लड़ाइयों के आदी थे, शराबियों के आदी थे, ये तरह तरह के गुनाह के आदी होने के बावजूद भी इस महीने की कदर करते थे, इज्जत करते थे, एहतराम करते थे। इस महीने में लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लूट मार नहीं करते थे, फितना परवरी नहीं किया करते थे, बल्कि वो लोग भी इस महीने की इज्जत और इसका एहतराम किए करते थे। लेकिन आज मैं और आप, दुनिया में बहुत सारी कौमें, दुनिया के बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत रसूल के नाम पर इस महीने को बदनाम कर दिया है। मेरे भाइयों, आइए हम देखते हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं और मोहब्बत किससे करना चाहिए, मोहब्बत कितनी करना चाहिए और मोहब्बत कैसे करना चाहिए, किस चीज़ का नाम मोहब्बत है। क्या दौरे हाजिर में लोगों ने आज ये तरह तरह के कामों को जो ईजाद कर दिया है, क्या हकीकत में इसे मोहब्बत कहते हैं? नहीं, इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं, इसे जिल्लत कहते हैं, इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे हवस परस्ती कहते हैं, इसे मोहब्बत नहीं कहते हैं, इसे नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी कहते हैं, इसे इज्जत और एहतराम देना नहीं कहते हैं, बल्कि जिल्लत और रुसवाई करना कहते हैं। मैंने कुरान करीम की जो आयत आप लोगों के सामने पढ़ करके सुनाई, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत के लोगों से, मेरे बंदों से आप कह दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ऐ लोगों, तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे और तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, ये दोनों कामों के लिए एक ही रास्ता है। अल्लाह की मोहब्बत तभी मिलेगी, अल्लाह तुमसे मोहब्बत उसी वक्त में करेगा, अल्लाह तुम्हें चाहेगा उसी वक्त में जबकि तुम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। इसका नतीजा क्या होगा? रसूल की पैरवी से फ़ायदा क्या है? रसूल की पैरवी से नफ़ा क्या है? रसूल की पैरवी का सवाब क्या है? सबसे पहला फ़ायदा रसूल की इताअत का, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वो इंसान कितना खुश नसीब है, वो इंसान कितना मुअज़्ज़ज़ है, वो इंसान कितनी इज्जत वाला है, वो इंसान का मकाम और मर्तबा कितना बड़ा होगा जिसे अल्लाह चाहे, जिसे अल्लाह चाहे, ये भी अल्लाह को चाहे और अल्लाह भी उससे चाहे। ये इबादत, ये आदत, ये इताअत सहाबा के अंदर मौजूद थी, इसीलिए अल्लाह ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये लोग अल्लाह से राज़ी हो गए और अल्लाह भी इनसे राज़ी हो गए।
रसूल की इताअत का बड़ा फ़ायदा, अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा, ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। हुकूकुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी काम होंगे अल्लाह ताला तुम्हारे माफ़ कर देगा, अल्लाह तुम्हारे दर्जात में बुलंद करेगा, इसलिए कि अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला है। मेरे भाइयों, क्या हमारे दिलों के अंदर जो मोहब्बत है वह हकीकत में रसूल की मोहब्बत है? क्या आज हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है? क्या आज हमारे दिलों में माँ बाप की मोहब्बत है? क्या आज हमारे दिलों में बच्चों की मोहब्बत है? क्या आज हमारे दिलों में बच्चों का एहतराम है? क्या आज हमारे दिलों में बड़ों की कदर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आदमी ये दावा करता है तो झूठा दावा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लाह से मोहब्बत करने का मतलब रसूल की इताअत है। रसूल की इताअत का मतलब क्या है? हमारी ज़िंदगी के हर काम में रसूल की इताअत हो। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा सोना, हमारा लिबास, हमारा तौर तरीक़ा, हमारी शादी ब्याह, हमारी नमाजें, हमारे रोज़े, हमारे इताअत, हमारी इबादत, ये तमाम के तमाम भी रसूल के तरीक़े पर हो, ये इताअत रसूल है। अगर हमारा निकाह रसूल के निकाह के बराबर नहीं है, उनके बताए हुए तरीके के बराबर नहीं है, तो फिर हम रसूल की इताअत नहीं कर रहे हैं, बल्कि रसूल के नाम पर बदनाम कर रहे हैं, दीन को बदनाम कर रहे हैं, हम भी बदनाम हो रहे हैं, शरीयत को बदनाम कर रहे हैं, माहौल को गंदा कर रहे हैं। तरह तरह के रस्म व रिवाज आज दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। मेरे भाइयों, आइए मैं आपको बताता हूँ हदीस की रोशनी में दो तीन बातों को बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अल्लाह ताला से कैसे मोहब्बत करते थे, अल्लाह की रसूल की इताअत कैसे करते थे। इताअत किसे कहते हैं? इबादत किसे कहते हैं? अल्लाह से मोहब्बत किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किसको कहते हैं? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ये कहते हैं, एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और मस्जिद नबवी के दो दरवाजे थे। दो दरवाज़ों से लोग मस्जिद में दाखिल होया करते थे और उसी दरवाजे से कभी ख़वातीन भी आ जाते, कभी मर्द हजरात भी आ जाते। इस दरवाजे से भी ऐसे ही हो जाता, उस दरवाजे से भी ऐसे ही हो जाता। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, उनके ग़ुलाम उनके बारे में रिवायत करते हैं उनके वफ़ात के बाद कि अल्लाह के नबी ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ऐ अब्दुल्लाह बिन उमर, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरा जी चाहता है, मेरी ख्वाहिश है, मेरा जी चाहता है कि इस दरवाजे को, जिस दरवाजे से मर्द और औरतें दोनों भी दाखिल हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ, मेरा जी चाहता है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि इस दरवाजे को मर्दों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ औरतों के लिए ख़ास कर दिया जाए, इस दरवाजे से कोई मर्द दाखिल ना हो। उसके चंद दिन के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम ये कहते हैं, उसके बाद से लेकर के मरते दम तक अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कभी भी वो दरवाजे से मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल नहीं हुए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि ये दरवाज़ा सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस कर दिया जाए। रसूल की ख्वाहिश पर सारी ज़िंदगी भर उन्होंने इस अमल को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आया और वो अमल को उन्होंने तर्क कर दिया, उस रास्ते को उन्होंने छोड़ दिया। कई ऐसी मिसालें हमारे पास हदीस के अंदर मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा मशहूर वाक़िया है, मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस आदमी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों की गर्दनें फांदते हुए क्यों आ रहा है? अल्लाह के बंदे उसी जगह पर बैठ जा। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर थे, अभी दूर थे, मस्जिद के दरवाजे में अभी अंदर दाखिल भी नहीं हुए थे, मस्जिद के बाहर ही वो मौजूद थे। उनको ये आवाज़ वहाँ पर पहुँची, या अब्दुल्लाह इजलिस, अल्लाह के बंदे बैठ जा। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वहीं बैठ गए।
फिर साहबा ने उनसे कहा, ये अल्लाह के नबी ने जो कहा बैठ जाओ बोल करके, वो आपको नहीं था, बल्कि एक आदमी मस्जिद में लोगों की गर्दनें फांदते हुए आगे आ रहा था, तो उससे कहा कि यहीं बैठ जाओ। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के नबी ने मुझे से कहा है कि आप बैठ जाओ, अल्लाह के नबी कहे आप बैठ जाओ, फिर आगे बढ़ने की हिम्मत और जुर्रत मेरे अंदर कहाँ से आ सकती है। ये कह करके वो उसी जगह पर जा करके बैठ गए। मर्दों की मोहब्बत ये थी, औरतों की मोहब्बत का अंदाज़ा तो बताया ही नहीं जा सकता है। तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, उनमें से मर्द भी थे, औरत भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ये तमाम के तमाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। कैसी मोहब्बत किया करते थे कि हमारी तरह से झूठे दावे किया करते थे? हरगिज़ नहीं। आइए मैं आपको बताता हूँ। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल हुदूद के अंदर एक हदीस को नकल करते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु वो हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं, मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी था। कान फ़ी अहदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुल इस्मुहु अब्दुल्ला कान युलक़ब बिल हिमार। उस आदमी का नाम था अब्दुल्ला और लोग उसे हिमार हिमार कह करके बुलाते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था। इतनी मोहब्बत किया करता था कि कभी कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ करके उनके बाजू में बैठ करके अल्लाह के नबी से गुफ्तगू करता, अल्लाह के नबी से बातें करता। इसकी बातों को सुन करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते। काना युदहिकुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अपनी बातों से, अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया किया करता था। लेकिन इसके अंदर ये गलती भी थी। ये गुनाह के मुर्तकिब भी हो गए थे, ये गुनाह के आदी भी हो गए थे, ये इससे छूट नहीं पा रही थी। वो था ये हमेशा शराब के आदी हो चुके थे। कई मरतबा उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये शराब का आदी हो गया था। कई मरतबा इसे अल्लाह के नबी के दरबार में लाया गया, शराब के जुर्म पर कोड़े भी लगाए गए थे उनको। तो ऐसे ही एक मरतबा उन्हीं लेकर के आए अल्लाह के नबी के दरबार में। वो शराब की हालत में, नशे की हालत में था। पकड़ करके लाए अल्लाह के नबी के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्हीं सज़ा दो, कोड़े लगाओ। कोड़े लगाए गए, सजा दी गई, उनको मारा गया उनको। इस दौरान में एक आदमी ने वहां पर कहा, अल्लाह की लानत हो इस बंदे के ऊपर, कितनी मर्तबा इसने शराब पिया है, सफड़ गया है। अल्लाह के नबी के पास लाया गया, इसे सजा दी गई, कोड़े मारे गए इसे, फिर भी ये आदमी अपनी आदत से बात नहीं आ रहा है। इस पर अल्लाह की लानत हो। ये जुमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अल्लाह के बंदे, तुम इसको इसकी गुनाह की वजह से लानत ना करो। क्यों लानत ना करो? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाता है। अल्लाह के नबी इसके बातों को सुन करके मुस्कुराते हैं। ये अल्लाह के नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। ये गलती कर रहा है, इसकी सज़ा मिल रही है। अल्लाह इसे जो सज़ा देगा वो देगा, अल्लाह का मामला उसके हाथ में होगा। लेकिन इस आदमी के ऊपर आप लान तान ना किया करो। अब ये कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करता था, दूसरी हदीस के अंदर उसकी वजाहत जिक्र कर दी गई या उसी किताब की शरह में ये बताया गया। ये आदमी मदीने के बाहर का था। जब अपने घर से बाहर से निकल करके मदीने में आता तो रास्ते में दरमियान में देखता कि कोई भी अगर अच्छी चीज़ मिल जाती, शहद अच्छी अगर मिल जाती तो उसे ले करके आता और अल्लाह के नबी को दे देता। घी अगर अच्छी मिल जाती वो लेकर के आता और अल्लाह के नबी को दे देता। कोई अच्छे खजूर, कोई अच्छा फ्रूट्स, कोई भी चीज़ अगर अच्छी चीज़ उसे मिल जाती, उसे पसंद अगर आ जाती, उसके पास पैसे भी नहीं होते थे, वो चीज़ लेकर के आ जाता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देता और कहता ये आपके लिए मेरे तरफ से तोहफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ले लेते, उसे इस्तेमाल कर लेते, उसे खा लेते, फल है तो खा लेते, शहद है तो चख लेते, पी लेते थे उसको। तो एक मरतबा ऐसे ही हुआ, वो रास्ते से आ रहा था, शहद बिक रही थी, वो बंदा शहद ले लिया, बतौर क़र्ज़ ले लिया, उसे पैसे भी नहीं दिया था। वो शहद लेकर के आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खा लिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी, थोड़ी ही देर गुजरी थी। वो बंदा जिसके पास ये शहद लेकर के आया था, उसे पैसे अदा नहीं किया था, वो बंदा इसके पास आया और कहा, है अल्लाह के बंदे, तूने मेरे पास शहद ले लिया है, वो शहद के पैसे तो दे दे।
تو صحابی نے کہا पैसा मेरे पास नहीं है, आओ दोनों मिल करके अल्लाह के नबी के पास जाए। फिर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस सहाबी को लेकर के गया जिसके पास से शहद खरीद करके लाया था, और अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इसको पैसे दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि पैसा, कौन सा पैसा देना चाहे? तो इसने कहा वो शहद जो ला करके मैं आपको दिया था ना, आप पी लिए ना, उसके पैसे दे दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो आप तोहफे में दिए थे, ये तो आप गिफ्ट में दिए थे, फिर इसके पैसे कुछ बात का है? साहबी ने कहा हाँ मैं तोहफे में लेकर आया था, पैसे में ही लेकर आया था, लेकिन फिर लोग मेरे पास पैसे नहीं, आप दे दीजिए उसको। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बातें इसकी सुन करके मुस्कुराते थे। तो इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा वह साहबी से, अल्लाह के बंदे अगर आपके पास पैसा नहीं था तो खर्च में वो चीज़ ला करके मुझे क्या देने की क्या ज़रूरत थी? तो इस बंदे ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे मुझे जो मोहब्बत है, आपसे मुझे जो अकीदत है वो ये है कि कोई भी चीज़ रास्ते में आते हुए जब मैं देखता हूँ मुझे अच्छी लगती है, वजनालिटी होती है, तो मेरा जी चाहता है कि कीमती चीज़, ये अच्छी चीज़ को आपके दरबार में ला करके पेश कर दूं। पैसे का मामला जो होगा वो बाद में देख लिया जाएगा। फिर मैं वो चीज़ को लाता हूँ और आपको मैं दे देता हूँ। आप जब उसे खाते हैं तो आपको देख करके मुझे खुशी महसूस होती है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी लाई हुई चीज़ को ले करके कबूल तोहफा कर लिया। तो ऐसे बेमिसाल वाक़ियात सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद हैं। मेरा बताना मकसद ये है मेरे भाइयों, असल हकीकत मोहब्बत की ये है कि इताअत किया जाए। अगर इताअत नहीं है तो फिर वो मोहब्बत के अंदर झूठे दावे हैं। आज कोई भी आदमी अल्लाह से हकीकत में मोहब्बत नहीं कर रहा है, रसूल से मोहब्बत हकीकत में नहीं कर रहा है। मैं और आप सारे के सारे भी झूठी मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। मोहब्बत किसको कहते हैं? अकीदत किसको कहते हैं? इताअत किसको कहते हैं? इबादत किसको कहते हैं? आज हमने इसे समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है हमने इसको। इताअत इसको कहते हैं कि एक आदमी आगे से चल करके जा रहा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में ही मौजूद है कि उनके गुलाम ये कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ में कभी निकल करके चलते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जाते थे तो उनके पीछे साहबा चल करके जाते थे। वो साहबा में से एक साहबी थे अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर रखने तक इंतज़ार करते। वो पैर रख करके उठाने के बाद फिर उसी में बराबर पैर रखते थे। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी काम को जैसे किया है वैसा ही करने को इताअत कहते हैं, और उतना ही करने को इताअत कहते हैं। उससे हट करके किया जाए उसे इताअत नहीं किया जाएगा, उससे बढ़ करके अगर किया जाए तो उससे भी इताअत हरगिज़ नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों, आज मोहब्बत के नाम पर दुनिया में क्या क्या हो रहा है देखो। सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे होना चाहिए? सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से होना चाहिए। अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी से मोहब्बत होना है, उसके बाद अपने माँ बाप से मोहब्बत, अपने बच्चों से मोहब्बत, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत। अब ये मोहब्बत के पैगाम को ना हमने समझा, ना तुमने समझा, ना बच्चों ने समझा, ना बूढ़ों ने समझा, ना जवानों ने समझा। आज जवान क्या समझ रहे हैं? अल्लाह रहम करे आज के ज़माने के नौजवान लड़के और लड़कियों के ऊपर। अल्लाह रहम करे आज के ज़माने के लड़के और लड़कियों के ऊपर। उन्होंने मोहब्बत के नाम पर हवस परस्ती दुनिया में कर रहे हैं, उसको हवस परस्ती के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। घरों को छोड़ रहे हैं, माँ बाप को छोड़ रहे हैं, इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं, जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ये मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत के नाम पर किस किस के साथ में कौन कौन भाग रही है? गैर मुस्लिम के साथ में भाग रहे हैं, ऑटो वालों के साथ में भाग रहे हैं, दुकान वालों के साथ में भाग रहे हैं। लड़का भी भाग रहा है, लड़की भी भाग रही है। अगर उनसे पूछा जाए कि ये क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा आप बताइए, क्या इसको मोहब्बत कहते हैं? बेहयाई है, बेहयाई है, हवस परस्ती है। आज के नौजवान लड़के और लड़कियों के अंदर फोन का एक डब्बा रख करके कहते हुए शर्म महसूस होती है। फोन का डब्बा हाथ में लेकर के उधर से एक लड़का, इधर से एक लड़की फोन के डब्बे को चूमते हैं, फोन के डब्बे को किस करते हैं और कहते हैं कि आई लव यू। क्या ये मोहब्बत है?
کہ یہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس پرستی ہے۔ آئی لو یو کے نعرے، آئی مس یو کے نعرے، آئی ہیٹ یو کے نعرے لگا رہے ہیں، اور دنیا میں وہ خود بھی بدنام ہو رہے ہیں اور ماں باپ کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو، یہ جو کسی لڑکی کو 1 یا 2 مرتبہ فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں دیکھنے کی وجہ سے یہ محبت کے جو دعوے کر رہے ہیں، یہ محبت کے دعوے محبت نہیں بلکہ یہ ہوس پرستی ہے۔ ایسے ہی لڑکے بھی ہیں، ایسے ہی لڑکیاں بھی ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں آج کے حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ کے روزانہ ایسے باتیں ہو رہے ہیں۔ کل یوٹیوب میں ملاقات ہوئی، کل فیس بک میں ملاقات ہوئی، ٹویٹر میں ملاقات ہوئی، آج صبح دونوں ملنے کے لیے کسی پارک میں آئے، ایک دوسرے کو دیکھے، یہ اسے پسند نہیں، وہ اسے پسند نہیں، دونوں کے درمیان میں لڑائیاں اور بدنام ہوتے ہوئے چلے گئے۔ اور اس سے بڑھ کر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آگاہ ہو جاؤ، سمجھ جاؤ محبت کس کو کہتے ہیں اور ہوس پرستی کسے کہتے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے والد سے محبت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیو، آپ میں سے کوئی آج یہ بتائیے، کیا آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے امی سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے؟ آپ ذرا بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، ہم میں سے کون ہے جو اپنی امی سے اے لو یو کہا ہو، اپنے ابو سے اے لو یو کہا ہو، اپنی والدہ سے کہا ہو، یا کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہا ہو، یا کوئی بیوی اپنے شوہر سے کہی ہے؟ حقیقت میں محبت کے لائق یہی لوگ ہیں۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی جائے، اس کے بعد اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، اللہ کے نبی کے بعد ماں باپ سے محبت کرے، بڑے لوگوں کی قدر کرے، عزت کرے، شفقت کے ساتھ میں پیش آئے۔ میرے بھائیو، محبت کے نام پہ دنیا کے اندر ہوس پرستی ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے، کسی لڑکی نے ایک لڑکے سے محبت کا اظہار کر دیا، پہلے کہہ دیا آئی لو یو، دوسرے دن آئے اور بتایا آئی ہیٹ یو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دیوانہ پن آ گیا ہے ان کے دلوں کے اندر۔ لڑکے اور لڑکیاں اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں، اپنے نسوں کو کاٹ رہے ہیں، اپنے جانوں کو قربان کر رہے ہیں، زہر پی رہے ہیں، ٹرین کے حادثے میں مر رہے ہیں۔ کیا یہی محبت ہے؟ میرے بھائیو، یہ محبت نہیں ہے، یہ ہوس پرستی ہے، یہ شیطان پرستی ہے۔ اس دلدل سے نکل کر کے باہر آ جاؤ۔ ٹی وی میں جو دیکھتے ہیں، سیریل میں جو دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ میں جو دیکھتے ہیں، لڑکے، آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی کو محبت سمجھ گئے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیو، وہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے، سب کو چھوڑ کر کے، عزت کو بدنام کر کے دنیا کے اندر نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ چند دن کے بعد ان کو معلوم ہو جاتا ہے یہ محبت نہیں بلکہ ہوس پرستی تھی۔ میرے بھائیو، حقیقت میں محبت سب سے پہلے اللہ سے کرو، اس کے بعد اللہ کے نبی سے کرو، اس کے بعد ماں باپ سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو۔ یہی حقیقت میں محبت کہلاتی ہے۔ بچے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں، یہ محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ اپنی ماں باپ کی بات کو مانیں، آپ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، تبھی چل کر کے آپ اپنے ماں باپ سے محبت کر رہے ہیں۔ زبان سے دعوے کر رہے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، محبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کی توہین کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ ایسے گزرے۔ کتنے واقعات میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو آئے عصر کی نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، پلٹ کر کے دیکھے کہ اللہ کے نبی، پلٹ کر کے صحابہ کی طرف بیٹھے، صحابہ کے ہاتھ میں انگوٹھی موجود تھی۔ دوسرے دن جب نماز کو آئے، دیکھا گیا تو سب صحابہ کے ہاتھ میں انگوٹھی، تقریباً سب صحابہ انگوٹھی پہن کر کے۔ اس کے بعد تیسرا دن جب ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی نکال دی، تو صحابہ نے بھی پھر نکال دیا۔ پوچھا گیا ان سے کیوں پہنے، کیوں نکالے؟ کہنے لگے پتہ نہیں، رسول نے کیا ہم نے کر لیا، رسول نے چھوڑ دیا ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی اصل میں اطاعت ہے، یہی اصل میں عبادت ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ کسی بھی معاملے میں، روزے کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، دعا کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، ہر معاملے میں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہماری زندگی میں۔
हमारे बच्चों की तरबियत रसूल की तरबियत करने के तरीके से हो। हम बीवियों से मोहब्बत जैसे अल्लाह के नबी ने मोहब्बत किया था वैसे मोहब्बत करें। हम अपने शौहरों से मोहब्बत जैसे अज़वाज मुतहहरात ने अल्लाह के नबी से किया था वैसे मोहब्बत करें। यही हकीकत में मोहब्बत कहलाती है। मोहब्बत के नाम पर दुनिया के अंदर गुंडागर्दी करना, मोहब्बत के नाम पर दुनिया के अंदर बेअक़ीदगी करना, तौहीद के खिलाफ तौहीद बिदअत परस्ती करना, ये मोहब्बत नहीं है। आज लोगों ने मुहर्रम के महीने में आशुरा के दिन को दुनिया के अंदर खून खराबे का दिन कर दिया है। लोग सीना पीट रहे हैं, सीने से खून निकाल रहे हैं, जबान से खून निकाल रहे हैं, उनके बदन से खून निकाल रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम हुसैन के मोहब्बत में मातम कर रहे हैं, मोहब्बत के नाम पर खून कुर्बान कर रहे हैं, मोहब्बत के नाम पर हुसैन के लिए अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। क्या हुसैन से मोहब्बत का तकाजा यही है? क्या हुसैन ने ऐसा किया है? क्या हुसैन ने मातम बनाया है? क्या सहाबा ने मातम बनाया है? क्या उन्होंने नौहा किया है? क्या उन्होंने मातम पुरसी किया है? ये हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा ने रसूल के लिए मातम नहीं किया। अबू बकर के जाने के बाद सहाबा ने मातम नहीं किया, उमर के जाने के बाद मातम नहीं किया, उस्मान के जाने के बाद मातम नहीं किया, अली के जाने के बाद मातम नहीं किया, हुसैन के जाने के बाद मातम नहीं किया, हसन के जाने के बाद भी मातम नहीं किया है। हुसैन के शहादत के तकरीबन 200 साल बाद किसी एक आदमी ने इसे ईजाद कर दिया मातम को। पंजे निकालना, मातम निकालना, उरूस निकालना हकीकत में यही मोहब्बत का तकाजा बना दिए हैं। मेरे भाइयों, ये बातें गलत बातें हैं। हकीकत में मोहब्बत इताअत है। मैं और आप ये सोचे कि हमारी ज़िंदगी का हर अमल अगर रसूल के तरीक़े के मुताबिक है तो मैं और आप अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं। मोहब्बत के दावे करके घरों के अंदर बिदात और खुराफात अगर कर रहे हैं, हरगिज़ इसे मोहब्बत नहीं कहलाया जाएगा। मोहब्बत के माने को समझे, मोहब्बत के हकीकत को समझे और ये भी समझे पहले मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत का माना और मफ़हूम क्या है, इसे अच्छी तरह से जान लिया जाए। फिर उसके बाद मोहब्बत किससे करना है, कितनी मोहब्बत करना है, उतनी ही मोहब्बत किया जाए। यही हमारी शरीयत हमें सिखाता है। खुलासे कलाम ये है कि इस मुहर्रम के महीने में मोहब्बत के नाम पर जो बिदात और खुराफात हो रहे हैं, ये बिदात और खुराफात का दीन इस्लाम से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये मोहब्बत हकीकी मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हवस परस्ती है, बल्कि ये शैतान परस्ती है। इस अंधेरे से निकल करके रोशनी की तरफ आए और सही बातों को जान करके, सही इस्लाम को जान करके उस पर अमल करने की कोशिश करे। अल्लाह से दुआ है परवरदिगारा मुझे और आपको दीन इस्लाम को सही तरह से समझ करके उसे अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर ले आने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिज़िक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बरूर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।